Hello students, good morning. This is your English class and we are reading chapter 4 Aldi Gibson. And we have done with part first yesterday. Now today let's continue with the same chapter, but before that let's revise the previous part in short and then I'll explain further on. Okay? So who was Aldi Gibson? Aldi Gibson was the first African American who broke the color line of tennis tournament and became the first color tennis champion. She was very talented since childhood and used to play every sport brilliantly. She dreamed to win tennis tournament, but that time segregation practice was prevalent all over United States of America. Means she could not take part in those sports or games because she had dark skin, she had dark complexion, and only white American can enter those tournaments. Then she decided to achieve her goal anyhow. So she started working really hard for it. She was really poor and had to work in a factory and in butcher's shop. She started taking lessons from Fred Johnson and won Negro Tennis Association Championship for girls at 16. Now let's see what happened after that. Okay? So where we were? Match the lines with me. Her skill began attracting the attention of the people who could help her. Dr. Hubert Eaton, underline the name Hubert Eaton, took Aldi to live with his family in North Carolina. She attended the local high school and practiced tennis regularly on the doctor's court. Okay? So she was really talented और धीरे धीरे इस चीज़ को सबने जान लिया because she won the championship for girls, Negro Tennis Association Championship for girls. She won at that time. After winning that title, everybody started talking about her talent. So that means she was really attracting her. All the people really appreciated her work and attracted towards her talent of playing sports in an splendid way. And then Dr. Hubert Eaton took Aldi to live with his family in North Carolina. Dr. Hubert Eaton Aldi को अपने साथ अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ कैरोलिना लेके चले गए और वहाँ पे एल्दी ने लोकल हाई स्कूल अटेंड किया, वहाँ से पढ़ाई की और उसके साथ ही साथ वो डॉक्टर्स का जो कोर्ट था, कोर्ट मीन्स टेनिस का जो कोर्ट होता है जिसमें गेम खेलते हैं, नेट लगा हुआ होता है बीच में, तो उस कोर्ट पे उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया रेगुलरली. ओके. द नेक्स्ट समर Aldi traveled the African American tennis tournament circuit. She played in 9 tournaments and won all 9. तो अगले समर में एल्दी अफ्रीकन अमेरिकन टेनिस टूर्नामेंट के ग्रुप के साथ टूर्नामेंट के दौरे पे जाती हैं और करीब 9 टूर्नामेंट्स खेलती हैं और वो सारे के सारे 9 टूर्नामेंट्स जीत जाती हैं. She also won the national women's single title which she held for 9 years. और इसी तरह से उनकी जीत बरकरार रहती है, which means कि she was really working hard and really dedicated towards her sports and games that she continued to win all the titles, all the tournaments. तो अगली जो नेक्स्ट उन्होंने जीता जो टाइटल वो था विमेन सिंगल्स टाइटल और ये भी वो 9 सालों तक कंटिन्यू जीतती गई. Aldi Gibson was now without a doubt the best women player in the African American tennis circuit. और एल्दी गिब्सन उसके बाद से
बिना किसी शुबा, बिना किसी डाउट के अब से बेस्ट वुमेन प्लेयर हो गई थी। अफ्रीकन अमेरिकन जो प्लेयर्स होते थे उन ग्रुप के बीच में, सर्किट हेयर मीन्स द ग्रुप पीपल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स। ओके, now Aldi became a successful student as well as a successful athlete. After graduation from high school, the young tennis star won an athletic scholarship to Florida A&M. She played on the school's tennis and basketball teams. To earn money, she worked in the women's physical education department. तो एल्दी अब एक सक्सेसफुल स्टूडेंट भी थी और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल एथलीट भी थी, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया था और अब वो एक यंग टेनिस स्टार भी थी। तो इसीलिए उनके टैलेंट के लिए उनको बेस्ट एथलेटिक स्कॉलरशिप भी मिली थी फ्लोरिडा जाने के लिए। और फिर वहाँ के स्कूल में उन्होंने टेनिस खेला और बास्केटबॉल टीम्स के साथ भी खेला और उसमें भी उन्होंने एक्सलेंस शो की अपनी और बहुत ही ब्रिलियंटली खेला। टू अर्न मनी शी वर्कड इन दी वीमेंस फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और अपनी इनकम के लिए उन्होंने काम करना भी स्टार्ट कर दिया और वहीं पे वीमेंस फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्हें जॉब मिल गई और वहीं पे वो काम करने लगी। स्टिल दिस सक्सेस डिड नॉट सेटिस्फाई एल्दीज ड्रीम। इतनी शोहरत मिलने के बाद, इतनी फेमस होने के बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं था, उन्हें वो शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड that with that success. So what she wanted, she was already the best African American women player. She wanted to be the best women player of any race. This is the main thing. But first she had to beat another opponent, segregation. So इतनी सक्सेस मिल गई फिर भी वो खुश नहीं थी, मीन्स सेटिस्फाइड नहीं थी। उन्हें अभी अपना ड्रीम उन्होंने अभी अचीव नहीं किया था, अपना एम उन्होंने अचीव नहीं किया था कि वो बेस्ट प्लेयर तो थी, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन विच मीन्स जो डार्क स्किन कलर पीपल थे, सिर्फ उन्हीं के साथ ही कम्पीट करती थी और उनके साथ ही जीतती थी और उनमें ही बेस्ट प्लेयर बनी। लेकिन उन्हें बेस्ट विमेन प्लेयर बनना था किसी भी रेस में। रेस मीन्स यहाँ पे उन्हें नस्लवादी विचारधारा को तोड़ना था, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ही दूसरे ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को खेलना चाहिए और वाइट पीपल उनसे ज़्यादा सुपीरियर होते हैं और उनके साथ उनको खेलने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, जो कि उस वक्त वहाँ का रूल था। इस चीज़ को, इस सिस्टम को उन्हें तोड़ना था और उन्हें एक बेस्ट वुमेन प्लेयर किसी भी स्पोर्ट या गेम में बनना था, ना कि सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, बेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन प्लेयर का टैग अपने ऊपर रखना था। वो लिमिटलेस होना चाहती थी, वो सिर्फ अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना चाहती थी कि उन्हें सिर्फ बेस्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन प्लेयर ही कहा जाए, बल्कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि टैलेंट का उसके स्किन कलर से कोई भी रिलेशन या लेना देना नहीं है उसका। बट फर्स्ट शी हैड टू बीट अनदर अपोनेंट, सेग्रीगेशन। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए सबसे पहले उन्हें सेग्रीगेशन को उसके साथ फाइट करनी थी। अपोनेंट मीन्स एनिमी या विरोधी। तो सबसे पहले उन्हें इस सिस्टम के खिलाफ लड़ना था ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, विच वॉज नॉट एन ईजी टास्क एट दैट टाइम। इट वॉज रियली डिफ़िकल्ट फॉर हर टू ब्रेक दैट system of that practice and thinking of segregation. Now black and white had played in separate tournaments. Now athlete faced opposition as she began, Aldi faced opposition as she began to break this color barrier. She wrote, "I will be accepted on my own merits." Underline this. And that is the way I want it. So she was really straightforward and clear about her dream that she said कि जैसे ही उन्होंने उस वक्त क्या था कि गोरे जो वाइट अमेरिकन्स थे सिर्फ वाइट अमेरिकन्स के साथ खेलते थे और जो डार्क स्किन कलर पीपल थे वो सिर्फ डार्क स्किन कलर वालों के साथ ही खेलते थे। तो इस तरह से एल्दी ने जब टेनिस टूर्नामेंट में जिसमें कि वाइट
पीपल वाइट अमेरिकन्स पार्टिसिपेट करते थे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहा, तो उसको जितने भी विरोधी जो उनके थे, अपोजिशन थे, उनका वो ऑब्जेक्शन करने लगे, उनके विरोध में बोलने लगे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज यू हैव गॉट ब्लैक एंड डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन, सो इस तरीके से तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि वो फेमस प्लेयर थी उस वक्त, बहुत सारे टाइटल्स उन्होंने ऑलरेडी जीत रखे थे और उनकी काबिलियत के बारे में सबको पता था, उनके टैलेंट्स के बारे में सबको पता था, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा कि मैं अपनी मेरिट्स पे एक्सेप्ट होना चाहती हूँ। वो चाहती थी कि दुनिया उन्हें, वर्ल्ड उन्हें उनकी काबिलियत के बलबूते जाने, ना कि उनके कलर या कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे। और उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ को प्रूव कर दूँगी और मैं यही चाहती हूँ और मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए। Aldi's merits as a person and athlete could not be denied। और क्योंकि वो एक फेमस टेनिस प्लेयर थी उस वक्त, तो उनकी जितनी भी मेरिट्स थी, जितनी भी उन्होंने अब तक जो जीत हासिल की थी, इतने सारे टाइटल्स जीते थे उन्होंने, तो उनकी बात को इस तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता था, उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे उस वक्त। तो इसलिए उनको फिर परमिशन दी गई खेलने की वाइट अमेरिकन्स के साथ भी। At Forest Hills in September 1950, underline this, Althea Gibson became the first color woman to play in the US Open tennis tournament. Okay? सो इस तरीके से जब उन्हें परमिशन मिल गई, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया इसके लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली मिल गई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपने आप को प्रूव किया। और उसके बाद फॉरेस्ट हिल्स सितंबर 1950 में एल्दी गिब्सन फर्स्ट कलर वुमन बन गई जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में खेला और पार्टिसिपेट किया। ओके, नो turn over the page. She didn't win, but she almost scored a tremendous upset over champion Louis Bro. Tremendous means splendid, awesome. तो उन्होंने वो पहली ऐसी महिला तो बन गई जो डार्क स्किन कलर थी और पहली बार वो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने उसमें खेला भी, मेहनत भी बहुत करी और लेकिन जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने एक टफ़ टाइम दिया। जो कि उस वक्त की चैम्पियन थी लुई ब्रो, उन्हें बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मीन्स बहुत ही टफ़ फाइट दी, बहुत मुश्किल से वो जीत पाई। तो इस तरीके से उन्होंने गेम को, स्पोर्ट्स को, उस टेनिस टूर्नामेंट को बहुत अच्छे से खेला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त जीत नहीं पाई थी। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? The next year she became the first colored person to play at Wimbledon। और अगले साल उन्हें विंबलडन में खेलने का मौका मिला, इंग्लैंड में, द मोस्ट फेमस एंड एक्साइटिंग ऑफ टेनिस टूर्नामेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस और एक्साइटिंग टेनिस टूर्नामेंट हुआ करता था और है भी, इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट वॉज लाइक प्लेइंग इन द वर्ल्ड सीरीज़ ऑफ सुपर बोल। वर्ल्ड सीरीज़ की तरह है और इसमें पार्टिसिपेशन करना और फिर उसे जीतना वो अपने आप में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दो एल्दी डिड नॉट विन द टूर्नामेंट, शी डिड विन अ विक्ट्री। नाउ एवरी कलर बैरियर इन टेनिस वाज ब्रोकन। और क्योंकि इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, विंबलडन में भी, तो इस तरीके से वो इस सीरीज़ को चूँकि जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से जीती हुई थी, क्योंकि उन्होंने किसके खिलाफ विक्ट्री हासिल की थी, किसके अगेंस्ट जीत हासिल की थी? कैन यू टेल मी? उन्होंने जीत हासिल की थी कि उन्होंने उस टाइम के इस इम्पॉर्टेंट रूल को ब्रेक कर दिया था। शी ब्रोक द कलर बैरियर एट दैट टाइम, दैट नो वन, not any black colored person can participate in Wimbledon or tennis tournament, but she took and proved herself though. So from now onwards, any player of any color can take part in these sports and games. So Althea Gibson broke the color line that time, and
in that way she won that victory. Okay, what happened later on we will see in the next chapter, because the video is going to be very lengthy. Okay, so till then, make the reading once again, and I'll see you next class. Thank you.